I want to discuss something, one more thing, because I have saw at least question in two states. दो state में मैंने questions means में देखे हैं. That's why I want to discuss this part as well under Article 21. अनुच्छेद 21 में मैं एक चीज आप लोगों से और डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने दो स्टेट में क्वेश्चन देखे हैं. सो ताकि आंसर फ्रेमिंग का रहे आपके पास तरीका. दैट्स व्हाई आई वांट टू डिस्कस दिस. व्हाट डज लाइफ मींस? लाइफ का क्या मतलब है? Sir, life is freedom. Not mere याद कर लेना चाहिए तुम लोगों को. so not mere animal existence. दैट्स इट. No. Also that it is not about the just life, but also the quality of life. नाउ सिंपल क्वेश्चन है कि does Article 21, that is right to life and personal liberty, includes right to die? ठीक. प्रश्न ये है कि क्या जीवन जीने का अधिकार में आपको मरने का भी अधिकार आपके पास है? राइट टू डाई भी है आपके पास? नहीं सर, नहीं है. No, sir. It was held in Gyankor. So it was held in Gyankor versus. I don't remember if it's State of Punjab or Union of India. Okay. Gyankor. अच्छा. Actually, the question regarding right to life, right to die, first came up in the case of P. Ratinam and others versus Union of India and others. केस का नाम आप सब लिख लो. So सबसे पहले जो right to die का question है, ठीक, whether right to life includes right to die, ठीक, it was take up in the case of P. Ratinam and others versus Union of India and others. This is a case of year 1994. What was held in this case? ठीक, two things were decided in this case. ठीक, it was two judges bench. Okay. R.M. Sahai and B.L. Hansaria. The judgment was written by B.L. Hansaria Justice. हाँ, before proceeding to that, आप लोगों के पास बेयर एक्ट है IPC का? What does section 309 of IPC deals? Sir, attempt to suicide. Attempt to suicide. Correct. So there were two questions involved in this case. First was कि whether section 309 of IPC is constitutional or not, and the first question was whether right to life includes right to die. So what was held? First question was answered positively, that it was held that right to life includes right to die. And secondly, section 309 of IPC was also held unconstitutional. ये हुआ था. अभी स्टेटस क्या है 309 का? Is it there in the Bear Act? Yes, sir. क्या स्टेटस है? It is constitutionally valid or not? नहीं सर, ये वैलिड नहीं है. Someone's mic is on. Please put it off. अच्छा, एक बहुत शानदार चीज मैं आपको आज 3 केस डिस्कस करूंगा मैं, और तीनों में मतलब
जितने भी जजेस थे बड़े पोएटिक हो रहे थे, ठीक। जो सबसे लेटेस्ट केस है, ठीक, अरुणा रामचंद्र बागवा, उसमें भी मिर्जा गालिब की एक लाइन यूज की गई थी, और पी आर रतिनम में भी दो चीजें यूज की गई थी। एक तो एक गांधी जी का कोट है, दैट डेथ इज आवर फ्रेंड, द ट्रस्ट ऑफ फ्रेंड्स, he delivers us from agony. I do not want to die of a creeping paralysis of my faculties, a defeated man. And एक इंग्लिश पोएट हैं विलियम अर्नस्ट हेनले, जो कहते हैं, आई एम मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम कैप्टन ऑफ माई सोल। ठीक, इनकी जो कंक्लूडिंग लाइन है उसका ये मतलब है कि I'll decide, ठीक, whether I had to live or not, ठीक। So this is my life and I'll be the deciding factor, ठीक। ये मेरा जीवन है और मैं डिसाइड करूंगा, क्योंकि मैं अपने फेट का मास्टर हूँ, ठीक, मैं अपने सोल का कैप्टन हूँ, ठीक। This has to belong to my body or not, this would be decided by me, ठीक। ये कोट किया गया था, ठीक। और ऊपर गांधी जी वाला क्या कहता है, डेथ इज आवर फ्रेंड, द ट्रस्ट ऑफ फ्रेंड्स, ही डिलीवर्स अस फ्रॉम एगोनी, आई डू नॉट वांट टू डाई ऑफ अ क्रीपिंग पैरालिसिस ऑफ माय फैकल्टीज, अ डिफीटेड मैन। ये अलग है। इसका क्या मतलब हुआ? कैन एनीवन एक्सप्लेन दिस? हारा हुआ आदमी सर। नहीं नहीं, अरे यार, दैट्स द कोट, दैट लास्ट में कि हारा हुआ। that he shouldn't, like, philosophically he wouldn't want to be bedridden and wait for death and not be able to do anything about it. He wanted to go by this last line. He wanted to have the choice of when he can be able to end his life, because he is not able to live it at his own terms anymore. So what is he suggesting, Gandhi ji? So euthanasia. गांधी जी ने बोला कुछ तो अच्छा ही बोला होगा। Euthanasia, that यहाँ ही का we are क्या allowed मतलब to है? have access to euthanasia. अगर तुम लोग जजमेंट पढ़ना नहीं सीखोगे, मतलब ऐसी छोटी, यहाँ ही का क्या मतलब है? Death. हाँ, लिखने के बाद बोलते हो तुम। हाँ, सर ही का पढ़ना। मतलब डेथ कैसे हो गया है? अरे भाई, फ्रेंड है ना। लाइन he says death is our friend, the trust of friends, death delivers us from agony. What does agony means? agony का क्या मतलब है? The pain. Extreme pain, sir. एक्सट्रीम पेन और पेन मोक्ष दे देता है इन सारी चीजों से। चलो, तुम लोग बताना मेरे को क्या मतलब है इसका, ठीक। लिटरेचर वाला कोई नहीं है बीए? तो स्पेसिफिकली टू क्वेश्चंस वर टेकन अप। फर्स्ट वाज कि वेदर राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई, ठीक। सेकेंडली, दैट वेदर सेक्शन 309 इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड और नॉट, ठीक। पहले में कहा गया कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई, ठीक। दूसरा क्या कहा गया कि सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी इज आल्सो अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आपको मैं चाहता हूं कुछ लिख लें तीरथ वाले में।
प्लीज राइट अ पैरा. ठीक. The court ruled the court ruled that right to life embodied in Article 21, that right to life embodied under Article 21 also embodied in it a right, इसको डबल उसमें कर लेना, a right not to live, a right not to live a forced life to his detriment. Disadvantages or disliking. ठीक. P. Rathinam में, ठीक, it was held that right to life embodies under Article 21 also a right not to live a forced life to his detriment, disadvantages or disliking. कहा गया जीवन जीने के अधिकार में जीवन ना जीने का भी अधिकार जो है अनुच्छेद 21 में दिया हुआ है. ठीक. ये आपको ये भी कहता है कि आप फोर्स्ड लाइफ नहीं जीना, आपको ऐसी लाइफ जो आप पसंद ना कर रहे हो, ठीक, जो डेट्रीमेंटल हो, ठीक, ऐसी लाइफ ना जीने का भी अधिकार आपको देता है. ओके. ये पॉइंट 1 हो गया. एक पॉइंट और मैं चाह रहा हूं इसमें आप देखो, पॉइंट 2. हाँ अमित. सर वो फिर आत्महत्या भी तो गैर कानूनी है सर, आईपीसी में. क्या अमित? आत्महत्या भी तो नहीं कर सकते ना सर. तुम कहाँ हो? तबीयत तुम्हारी सही नहीं हुई है. नहीं सर, मैं थोड़ा लेट आया इसमें, मतलब वो मैंने डिवाइस स्विच करा था ना, अच्छा अच्छा. आवाज नहीं आ रही थी दूसरे में. पी रत्नम में बेटा 2 प्रश्न उठे थे. ठीक. पहला कि सेक्शन 309, ठीक, जो अटेम्प्ट टू सुसाइड को पनिश करता है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं. दूसरा, क्या राइट टू लाइफ, राइट टू डाई इंक्लूड करता है. ठीक. दोनों आंसर पॉजिटिवली आंसर किया गया था. पी रत्नम में क्या कहा गया था कि राइट टू लाइफ ऑल्सो एम्बॉडीज राइट नॉट टू लिव, ठीक, अ फोर्स्ड लाइफ, अ लाइफ ऑफ डेट्रीमेंट, डिसएडवांटेज और डिसलाइकिंग. दूसरा कि सेक्शन 309 जो आईपीसी का है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. उसके लिए मैं 2 मोटे मोटे सरल में पॉइंट्स लिखा दे रहा हूँ, बिकॉज ये मेजर क्वेश्चन 2 उसमें मैंने देखा था. ठीक. तो मैं पूरा इसकी एक जर्नी कवर करना चाह रहा था क्लास में, यही डिस्कस हो रहा था बेटा. ठीक है सर. ओके बेटा. 309 वाले में कहा गया, दूसरा पॉइंट इसी में लिख लेना, पी रथिनम में ही. सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी, कोर्ट हेल्ड दैट section 309 of IPC violates Article 21. Violates Article 21 and therefore it is void. According to court या as per court, अकॉर्डिंग टू. और जब मैं कोर्ट कहाँ करूं तो अपने आप सामने ऑनरेबल लगा देना, मैंने आपको बहुत बार बोला है बेटा. ठीक.
according to court, this is necessary. अमित हाथ रेज किया है आपने बेटा या पहले वाला ही? सर पहले वाला ही है, मैं कर रहा हूँ। This is necessary according to court, according to honorable court लिखना आप लोग। According to honorable court, this is necessary to humanize the law. To humanize the law as attempt to suicide is a medical and social problem. Attempt to suicide is a medical and social problem. Is a medical and social problem. And our best dealt with a non-penal measure. The court emphasized that section 309 of IPC। अच्छा बेटा, जब आप लोग आंसर लिखना ना, तो जैसे मैं यहाँ आईपीसी बोल दे रहा हूँ ना, तो जब पहली बार आईपीसी लिखना तो पूरा कोड का नाम लिखना, ठीक? पहले बता देना उनको, आईपीसी हियर इन आफ्टर इंडियन पिनल कोड। सर ये पेपर में एक बार लिखना है या हर क्वेश्चन में एक बार लिखना है? पेपर में एक बार, जिस क्वेश्चन में यूज करना बेटा, ठीक, हियर इन आफ्टर कर देना, ठीक, ताकि जितनी बार आईपीसी मतलब उस क्वेश्चन स्पेसिफिक में लिख देना। शॉर्ट फॉर्म इससे ये होता है कि जो एग्जामिनर होता है ना, जैसे हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, जब शॉर्ट हैंड यूज करते हैं, ठीक, तो एग्जामिनर को लगता है कि आपका अप्रोच जो है वो बहुत लाइट है, ठीक, तो एक तरीके का गलत इंप्रेशन जाता है। और राइटिंग कोड ऑफ कंडक्ट में दिल्ली और हरियाणा में पहले ये बता दिया जाता था कि मतलब आप शॉर्ट हैंड लैंग्वेज यूज नहीं करते, ठीक, तो ये भी अपने आप में मना किया जाता है हमेशा। जैसे कि आदत होती है हम लोगों की, विटबीन ऐसे लिख दिया, ठीक, एंड ऐसे लिख दिया। इस एंड का अपना अलग मतलब होता है वैसे तो, इस वाले एंड और इस वाले एंड दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक। एक एज अ कंजंक्शन यूज होता है, ठीक, दूसरा जो है दो थिंग्स और ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, बट हम यूजुअली लिख देते हैं, ठीक। तो अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मुझे भी नहीं बोलना चाहिए, मुझे भी इंडियन पिनल कोड बोलना चाहिए आपको, ठीक। तो आप लोग अपने आदत में ऐसा मत डालना, पेपर में यह ध्यान रखना, हिंदी इंग्लिश दोनों, ठीक बेटा? ओके सर। हाँ, शॉर्ट हैंड अवॉइड करना, ठीक, मतलब ये आदत पड़ जाती है, हम जैसे शुरुआत से लिखते आते हैं तो वो उसी टोन में चलते हैं, तो ये इसीलिए मैं एम्फेसिस करता हूँ कि आप लोग आंसर राइटिंग स्टार्ट करें, ठीक। क्या बोल रहा था मैं? द कोर्ट एम्फेसाइज दैट सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी is cruel, निर्दयी, and irrational, is and irrational, which results actually
which results actually in punishing an individual twice. In reality, attempt to suicide is a cry for help and not for punishment. रीजन समझ में आया बेटा कोर्ट का, कि कोर्ट ने 309 को क्यों डिक्रिमिनलाइज कर रहा था, या क्यों डिक्रिमिनलाइज नहीं, क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर रहा था। ठीक, उन्होंने कहा कि जब आप अटेम्प्ट टू सुसाइड को पनिश करते हैं तो एक्चुअली आप एक तरीके का दोहरा पनिशमेंट देते हैं। ठीक, एक आदमी जो सुसाइड कर रहा है, ठीक, आप वो अगर उससे बच जाता है तो आप बोलते हैं अब हम आपको और पनिश करेंगे, वो अपने आप में एक पनिशमेंट है, और फिर आपको उसको आप एक दोहरा पनिशमेंट दे रहे हो। ठीक, और एक्चुअल में जो अटेम्प्ट टू सुसाइड है ये एक तरीके का क्राई है। ठीक, ये एक तरीके का आप लोगों एक तरीके का इंडिकेशन है, ठीक, कि वो उस आदमी को आपकी हेल्प की ज़रूरत है, ना कि पनिशमेंट की ज़रूरत है। ठीक, जो आदमी सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है, ठीक, उसको मदद की ज़रूरत है, ना कि पनिशमेंट की। ठीक, वो एक तरीके से एज एन इंडिकेशन लिया जाना चाहिए कि दैट पर्सन नीड्स हेल्प नॉट पनिशमेंट। ठीक, तो ये बहुत ही इरेशनल, ठीक, और क्रूअल है। ठीक, दैट्स वाई सेक्शन 309 इज अगेंस्ट द आर्टिकल 21 and it should be held unconstitutional and void. Clear? Yes, sir. Yes, sir. अब आता है बेटा अगला केस, वो होता है आपका ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक, ये आपका 1996 का केस होता है। ठीक, कितने जजेस बेंच चाहिए? 5 जजेस, JS वर्मा, GN रे, NP सिंह, फैजुद्दीन एंड GT नानावती। ठीक, यहाँ पर क्या होता है इस केस में? इस केस में बेटा PR रतिनम के उसको रिवर्स कर दिया जाता है। PR रतिनम में क्या होता है? ठीक, सबसे पहले क्या कहा जाता है कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू नॉट लिव, ठीक, और राइट टू डाई। सेकेंडली, दैट सेक्शन 309 ऑफ IPC इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक, उस 1994 के जजमेंट को ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के 1996 के जजमेंट से ओवरटर्न कर दिया जाता है। ओवरटर्न का क्या मतलब हुआ? पहली चीज ये हेल्ड की गई कि राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड्स राइट टू डाई। सेकेंडली, ये बोला गया कि सेक्शन 390 इज कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक, अच्छा, उसके पीछे की कहानी क्या थी? उसके पीछे की कहानी ये थी कि यहाँ पे ज्ञान कौर जो है और इनके हस्बैंड को ट्राई किया जा रहा था, ठीक, फॉर द अबेटमेंट ऑफ द attempt to for the abatement of attempt to suicide of their daughter-in-law। ठीक,
अबेटमेंट टू सुसाइड किस सेक्शन में है? 306. 306 ऑफ आईपीसी। ठीक, इसमें 306 के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को भी चैलेंज किया गया। ठीक, ये कहा गया कि जब 309 जो है, ठीक, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, ठीक, तो 306 को एज एन ऑफेंस आप कैसे क्रिएट कर देंगे? बात समझ में आई? दैट्स व्हाई 309 वाज हेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड एंड 306 वाज आल्सो हेल्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, and it was said that a right to life does not includes right to die। ठीक, इसमें भी लिख लो आप लोग, 5 जजेस बेंच था। ठीक, इसमें एक बात कही गई थी, पॉइंट 1 डालना इसको, लिखना आर्टिकल 19 Article 19 cannot be compared with Article 21 and it is implicit in Article 19 that a person may choose not to use that freedom। एक्चुअली यहाँ पर रिस्पोंडेंट जो थे बेटा, उन्होंने एक लॉजिकल आर्गुमेंट रेज किया था। लॉजिकल आर्गुमेंट क्या रेज किया था? उन्होंने कहा कि जैसे कि चूंकि आर्टिकल 19 में आप कहते हैं कि जो आपको फ्रीडम्स मिली हैं, ठीक, जो भी फ्रीडम्स आपको दी गई हैं, ठीक, इट इज अप टू यू, ठीक, दैट यू वांट टू चूज दैट फ्रीडम और नॉट। ठीक, अब जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आई हैव राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक, आई वांट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ और आई वांट टू कीप साइलेंस। ठीक, दोनों राइट्स अवेलेबल है ना? एक सेकंड पहले आप लोग समझ लो फिर लिखो। ठीक, तो उन्होंने इसी पे आर्गुमेंट बिल्ड किया बेटा, इसी पे आर्गुमेंट बिल्ड किया कि जैसे राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जहाँ पे आपके पास राइट है, ठीक, दैट यू वांट टू स्पीक, यू वांट टू एक्सप्रेस, यू कैन, एट द सेम टाइम यू हैव आल्सो राइट, ठीक, नॉट टू स्पीक, टू बी साइलेंट। ठीक, आपके पास राइट है टू फ्रीली रोम अराउंड। ठीक, आप चाहें तो रोम कर सकते हैं, चाहें तो रोम ना करें, ये आप पे निर्भर करता है कि आप कौन सा फ्रीडम यूज करना चाह रहे हैं, कौन सा फ्रीडम नहीं यूज करना चाह रहे हैं। ठीक, तो इट वाज सेड कि इन द सेम मैनर राइट टू लाइफ इज आल्सो राइट, दिस हैज टू बी कंस्ट्रूड इन दिस मैनर ओनली, कि जैसे आपके पास आर्टिकल 19 में फ्रीडम है, ठीक, राइट टू स्पीच फ्री, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, जहाँ पे आपको राइट टू साइलेंस का है, उसी तरीके से राइट टू लाइफ में आपके पास इम्प्लिसिट राइट है, राइट नॉट टू लिव एज वेल। ठीक, एंड दिस आर्गुमेंट वाज declared by the court that no, this is not a valid argument। उस पे कोर्ट ने क्या कहा कि आर्टिकल 19 जो है, ठीक,
कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ आर्टिकल 21। ठीक, यहाँ पे जो कंपेयर की बात की जा रही है वो कंपेयर उस आर्गुमेंट के रिगार्ड में बोला जा रहा है, दैट इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड with article 21 and it is implicit in article 19 that a person may choose not to have the freedoms that are provided under article 19। ठीक, आगे लिखना। but article 21 simply guarantees right to life and personal liberty। ठीक, इसके बाद कोर्ट ने कहा it is not a freedom, it is not a freedom of action, it is not a freedom of action as in article 19। फ्रीडम ऑफ एक्शन का यहाँ क्या मतलब है बेटा? Sir, which any action which we can choose to do or हाँ not to ठीक, do. ये कह रहे थे। ठीक, देखना आप लोग अपने वर्ड में कंस्ट्रू कर लेना, बिकॉज जो जजमेंट का लैंग्वेज था, ठीक, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब जजमेंट अपने तरीके से लिखा गया हुआ था, तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है अपने लैंग्वेज में। आप मुझसे बेटर लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक, दिस इज बस एक फ्रेमवर्क टाइप का मैं आपको दे रहा हूँ बेटा, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट सेइंग ऑफ द। ठीक, मैं बस इसको सिंप्लीफाई किया हूँ, आप इस मुझसे भी बेटर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये कहा गया कि जो आर्टिकल 19 में फ्रीडम है वो फ्रीडम ऑफ एक्शन है, ठीक, जो कि आर्टिकल 21 में नहीं है। ठीक, वहां आप कुछ करने ना करने का फ्रीडम है आपके पास, बट द सेम काइंड ऑफ फ्रीडम इज नॉट प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 21। ठीक, इट सेड इट इज नॉट फ्रीडम ऑफ एक्शन एज इन आर्टिकल 19, rather it is only declaration, it is only declaration of the right to live। ठीक, आगे बोलता है, लिख, यहां तक हो गया ना? Yes, sir. Yes. फिर कोर्ट कहता है कि इट इज नॉट फ्रीडम ऑफ एक्शन एज इन आर्टिकल 19, रेदर इट इज ओनली डिक्लेरेशन ऑफ द राइट टू लिव। आर्टिकल 19 में जो है वहां पर आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्शन है कि आप बोलना चाहते हैं तो आप बोलिए, आप नहीं बोलना चाहते हैं तो मत बोलिए। ठीक, लेकिन राइट टू लिव कोई एक्शन नहीं है। ठीक, इट इज नॉट काइंड ऑफ एक्शन, रेदर इट्स अ डिक्लेरेशन। ठीक, राइट टू लिव इज रेदर अ डिक्लेरेशन। ठीक, इट्स नॉट एन एक्शन जो आपके हाथ में है। ठीक, कि आप ये करें या ना करें। ठीक, ये आपके हाथ में नहीं है। ठीक, ये आपको कोई फ्रीडम जो है स्टेट द्वारा दी नहीं जा रही है। ठीक, रेदर इट्स अ डिक्लेरेशन, कोई चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही, बस बताया जा रहा है। ठीक, रेदर इट इज ओनली डिक्लेरेशन ऑफ द राइट टू लिव। ठीक, अ पर्सन लिव्स नॉट बिकॉज he has chosen to live,
rather he lives per se as he exist। समझो यहाँ पे क्या कहता है कि जो राइट टू लाइफ है ये सिर्फ डिक्लेरेशन है, ठीक, ये ना आपके हाथ में है, ना मेरे हाथ में है, ना स्टेट के हाथ में है। एक पर्सन जो लिव कर रहा है, अ पर्सन लिव्स नॉट बिकॉज ही हैज चोजन टू लिव, रादर ही लिव्स पर से एज ही एग्जिस्ट। ठीक, ये आप क्या आपने डिसाइड किया है कि आप जिंदा रहेंगे? ठीक, आप पैदा हुए हैं, आप रहेंगे, ये आपका डिसीजन नहीं है। आप एग्जिस्ट कर रहे हैं इसलिए आपको जीना है। ठीक, इट इज नॉट इन योर हैंड्स। ठीक, लाइफ और डेथ इज नॉट इन योर हैंड। ठीक, तो ये आप नहीं डिसाइड करेंगे। ठीक, यू एग्जिस्ट पर से बिकॉज यू एग्जिस्ट, दैट्स व्हाई यू लिव पर से। ठीक, आपने नहीं डिसाइड किया कि आपको जीना है तो आप जी रहे हैं। ठीक, या आप नहीं डिसाइड करेंगे कि आपको मरना है तो आप मर जाएंगे। ठीक, जैसे आपके पास जीने वाला अधिकार आपका अपना खुद का नहीं है, वैसे मरने वाला भी आपका खुद नहीं हो सकता। ठीक, इसको आप इसको इस सिंप्लीफाई तरीके से ऐसे समझिए, लाइफ आपकी आपको किसने दी? आपने दी है अपने आप को? नहीं। ठीक, क्या आपने अपने आप को लाइफ दिया है? नो सर। नो। ठीक, यू आर लिविंग बिकॉज यू एग्जिस्ट। ठीक, दैट्स व्हाई यू आर लिविंग पर से। ठीक, ये आपके डिस्क्रिशन पे नहीं है, ये स्टेट के डिस्क्रिशन पे नहीं है। ठीक, स्टेट आपको लाइफ नहीं दे रहा है। ठीक, इट्स जस्ट अ डिक्लेरेशन। इसलिए आर्टिकल 21 इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ द अदर आर्टिकल्स। आप समझ रहे हैं? यस सर। ठीक, सो दैट्स व्हाई इट इज, इस कंस्ट्रक्शन से ये कहा गया कि आर्टिकल 19 से इसका आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक, बिकॉज लिविंग अ लाइफ इज नॉट अ काइंड ऑफ एन एक्शन, ठीक, दैट कैन बी गिवन इन योर हैंड। आप बात समझ रहे हैं? यस सर। शालिनी, खुशबू, ज्योति, अरुण, प्राची, रवि, आप सब Yes, बात समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ बेटा? Yes, sir. जी सर, बिल्कुल समझ रहे हैं। ओके बेटा। थस विद रिस्पेक्ट टू, आप लोग पूरा लिखना, या मतलब अभी शॉर्ट में लिख लो, जब आप अपने नोट्स बनाना तब पूरा लिखना। विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 21, with respect to article 21, the analogy of P Rathinam case, ठीक, जिसमें यह कह दिया गया था कि राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू डाई। ठीक, दैट एनालॉजी कैन नॉट बी अप्लाइड थस, 10 बोलते हैं, थस बोलते हैं इसको, 10 ना, 10 a person thus a person does not have the right, thus a person does not have the right not to live, इसको उसमें करना है, the right not to live, because he has the right to live, because he has the right to live। ठीक, मतलब वही एग्जैक्टली जो पी रत्नम में कहा गया था उसको ओवरटर्न किया गया कि यू हैव राइट टू लिव, दैट डज नॉट मीन्स यू हैव राइट द राइट नॉट टू लिव। ठीक, दिस एनालॉजी कैन नॉट बी ड्रॉन लाइक दिस।
क्लियर है बेटा? अच्छा, ये जो मैंने लिखा है ना, ये मैंने जजमेंट से मतलब शॉर्ट तरीके से कंपाइल करने की कोशिश की है, तो इसमें अगर कोई ग्रामेटिकल एरर्स हो बेटा तो वो आप देख लेना। ओके ओके सर। ठीक, ये एक कैविएट है बेटा मेरी तरफ से, ठीक, बिकॉज मैं जजमेंट पढ़ के उसको सॉर्ट करने की कोशिश किया हूँ, ठीक। तो इसमें ग्रामेटिकल एरर्स हो सकती हैं जो आप मुझसे बेहतर जानते हो, ठीक, वो करेक्ट कर लेना। मैंने कोशिश की है कि मतलब ऐसा कोई बड़ा ब्लंडर ना हो ग्रामेटिकल एरर का, बट इफ इट हैपेंस प्लीज करेक्ट इट। ओके सेकेंड पॉइंट लिखना बेटा। हो गया है सबका ना? यस सर। ओके बेटा। Second, it was said in this case that if the commission of the suicide, if the commission of the suicide, if the commission of the suicide is allowed, then there will be suicidal alarm in the society. People will start committing suicide on very petty issues. On very petty issues, and that will create chaos in the society. Is it clear with everyone, beta? सर 1 मिनट। हाँ, please take your time. Please take your time. सर, was there any suicidal alarm in the society? ये 2 साल तक इफेक्ट में था ना, पीरती नाम केस? एक्चुअली उस 2 साल में लॉ कमीशन का भी रिपोर्ट आया था अरुण, जिसमें लॉ कमीशन ने भी कहा कि सेक्शन 309 को जो है स्क्रैप कर दिया जाना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक। सो एज सच कोई डाटा तो एज सच नहीं था, बट आई ऑल्सो फाइंड दिस टू बी एप्टली करेक्ट। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ क्रिमिनलाइजिंग अटेम्प्ट टू सुसाइड बेटा, ठीक। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ क्रिमिनलाइजिंग अटेम्प्ट टू सुसाइड, ठीक। मैं अटेम्प्ट टू सुसाइड को क्रिमिनलाइज करने के फेवर में नहीं हूँ, बट आई एम ऑल्सो नॉट इन द फेवर ऑफ, ठीक, जहाँ पर राइट टू लाइफ should be given at the pearl of the person itself, that he or she will decide whether he or she has to live or not, ठीक। बिकॉज एक तरीके से आप इसका इम्प्लिसिट यही मतलब होगा अरुण की यू आर गिविंग एक स्टैट्यूटरी, आप उनको इन हैंड जो है परमिशन दे रहे हो, ठीक, दैट समवन वांट्स टू लिव और नॉट टू लिव, ठीक। तो एक कोअर्सिव फैक्टर की तरह यूज किया जा रहा था। अभी मैं आपको एक चीज़ आगे और बताऊंगा, एक एक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा, ठीक, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक, जहाँ पे एक तरीके से आज के समय में 309 का कोई इफेक्ट नहीं बचा है बेटा, ठीक। 309 इज नॉट इफेक्टिव उस एक्ट की वजह से। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है क्या?
हाँ 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 हाँ, अमानत, अमानत, यस सर। हाँ बेटा, इट्स मेंटल हेयर केयर। सर वही सेक्शन 115(1). हाँ, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 है ना, 2017। सर ईयर याद नहीं। हाँ 2017 है। चेक कर लेना एक बार, कोई चेक कर लेना बेटा। आई थिंक इट मस्ट बी 2017 और 16, 2016 या 17, इन्हीं दोनों में से पक्का है। देख लेना आप एक बार, देख लो, देख लो, देख ही लो। 2017 से। 2017 ना, हाँ। इसका सेक्शन 115 जो है, हाँ अरुण, इन बिटवीन व्हाट यू वांटेड टू कंक्लूड अरुण? सर मैं तो यही कह रहा था कि लाइक जैसे पीरतीना में आपने बताया कि लाइक इट्स अ मेडिकल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, रेदर देन क्रिमिनलाइजिंग इट। हाँ मतलब वही पॉइंट बोल रहा था मैं भी, आज जो आपने हाँ रिपीट किया उसके बाद। हाँ, लेकिन चूंकि अरुण तुम्हारे यहाँ एजुकेशन जो है उस लेवल की नहीं है, ठीक, तो उसका मिस इंटरप्रिटेशन ज्यादा होने का डर हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट को लग रहा था कि दिस वुड बी मोर मिस इंटरप्रेटेड रेदर देन राइटली इंटरप्रेटेड, ठीक। इसको लोग एज अ लीगल राइट समझने लगेंगे, ठीक। सो कोर्ट वाज इन नॉट इंक्लिनेशन ऑफ बीइंग, इसको एक तरीके का राइट नहीं देना चाहती थी कि नो, दिस कैन नॉट बी गिवन एज अ राइट, ठीक। हम इसको एज अ राइट रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते, ठीक। बिकॉज फिर मोरली ये बर्डन जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे आ जाता कि राइट टू डाई का वो एक राइट देने का काम सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। एंड मैं भी इफ फ्रेंकली स्पीकिंग मैं भी इस फेवर में नहीं हूँ, ठीक। मैं फेवर में इसके भी नहीं हूँ कि उसको क्रिमिनलाइज किया जाए, बट मैं इसके भी फेवर में नहीं हूँ कि इसको एज अ राइट दे दिया जाए, ठीक। आप अंतर समझिए दोनों में, ठीक। और मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ने वही किया है जो तुम चाह रहे हो अरुण ना, वही हुआ है आज के टाइम में बेटा। तो काइंड ऑफ लूप होल है सर ये, एक। लूप होल, लूप होल क्या मतलब, आप समझ लो वो इनफेक्टिव है बेटा। सेक्शन 309 इज इनफेक्टिव इन अ वे। ओके सर। हाँ, क्या है सेक्शन 115 में अमानत? सर वो नॉट विथ स्टैंडिंग वाला क्लॉज है जो बोला था कि कोई भी सेक्शन 309 में है उस पे इस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और फिर एक लिख लो, कंडीशन भी दे दिया था चलो सर। अब लिख लो, फिर क्लियर ही रहे इस पे पूरा, हाँ आंसर ही क्रिएट हो जाए। एक है बेटा आपका मेंटल मेंटल केयर हेल्थ एक्ट 2017 में आया है। इसका सेक्शन 115 कहता है बेटा, लिख लो, it is clearly provided in section 115, it is clearly provided in section 115, it is clearly provided in section 115 of MHCA मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, ठीक, MHCA 2017। अब आप लोग ये मत लिख देना एग्जाम में प्लीज, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, गलती मत करना आप लोग। इट इज, क्या बोला मैंने, इट इज क्लियरली प्रोवाइडेड इन सेक्शन 115 of MHCA 2017 that whenever a person whenever a person attempts to commit suicide
he shall be presumed to have acted under severe stress and therefore section 309 shall not apply on such person. सेक्शन 115 ये कहता है बेटा कि जब भी कोई पर्सन सुसाइड कमिट करेगा, ठीक, तो हमेशा कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी, ठीक, कि दैट पर्सन is under severe stress and hence he is under severe stress. Section 309 of Indian Penal Code shall not apply on such person. ठीक, तो एक तरीके से सेक्शन 115 MHCD 2017 का क्या कर रहा है, ये सेक्शन 309 ऑफ IPC को ओवरराइड कर दे रहा है। अच्छा, दो लॉज हैं बेटा, एक है स्पेशल लॉ कोई और एक है जनरल लॉ, ठीक। अगर इन दोनों लॉज के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो जनरल रूल क्या कहता है? तो वीडियो रुक गया है। सब हैंग हो गए हैं। जनरल रूल तो ये है ना कि स्पेशल एक्ट विल ओवरराइड। Am I visible now? नो सर। Now am I visible? नो सर। नो सर। 1 घंटे पे ये होता है रोज ना। करवा रहा था चाय में मिलेगा। ये वाला खत्म कर लेते हैं, फिर कर लेते, 2 मिनट का ब्रेक हो जाए। Am I now visible बेटा? No, sir. You are audible, sir. You can tell us. ओके, सो मैं आपसे ये पूछ रहा था बेटा कि अगर कोई स्पेशल लॉ है और अगर कोई जनरल लॉ है, ठीक, तो जनरल रूल क्या होता है, विच विल प्रिवेल? ठीक, जनरल रूल ये होता है कि जब भी कोई स्पेशल लॉ और जनरल लॉ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो स्पेशल लॉ प्रिवेल करेगा। अब जैसे सेक्शन 309 और सेक्शन 115 में यहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, ठीक, तो क्या प्रिवेल करेगा? सेक्शन 105 ऑफ मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, ठीक। ये क्या कहता है कि कोर्ट हमेशा ये प्रिज्यूम करेगी कि जो पर्सन अटेम्प्ट टू सुसाइड कर रहा है वो अंडर सीवियर स्ट्रेस था, ठीक, एंड सिंस ही वाज अंडर सीवियर स्ट्रेस सेक्शन 309 विल नॉट अप्लाई। तो अब सेक्शन 115 क्या कर रहा है, 309 को एक तरीके से पूरी तरीके से इनइफेक्टिव कर दे रहा है। अच्छा, यहाँ मेरा एक क्वेश्चन ये है कि क्या ये रिबटेबल प्रिजम्पशन है या नहीं? यस सर। नो सर, इररिबटेबल होगा। रिबटेबल है सर। रिबट कर सकते हैं आप इसको? एम आई विजिबल नाउ कि अब भी नहीं आया हूँ? नहीं सर। विजिबल भी नहीं है, स्क्रीन भी नहीं आ रही है। इट इज ग्रेट। अब नो सर। सर। मुझे आप सब दिख रहे हो? अच्छा,
कुलदीप दिख रहे हैं मुझे साफ साफ, मैं क्यों नहीं दिख रहा हूँ? चरण भी दिख रहे हैं भाई। Why am I not visible? अब भी मैं विजिबल नहीं हो रहा हूँ। वो तो चाय रहा वाय है, पी लेती है सर। ऑडियो और वीडियो मैच नहीं कर रही। अच्छा, ऑडियो वीडियो मैच नहीं कर रही। अच्छा, स्क्रीन आ रहा है? नहीं आ रहा सर। नो सर। Law sequence started screen sharing. The screen is not visible. ओके, ग्रेट। अच्छा, आप लोग मेरे को सुन पा रहे हो ना? सर यस सर। हाँ, ठीक। ये प्रिजम्पशन रिबटेबल है प्राची, ठीक। दिस प्रिजम्पशन इज रिबटेबल, इट इज नॉट इरिबटेबल प्रिजम्पशन, दिस इज रिबटेबल प्रिजम्पशन, ठीक। रिबटेबल है, बट जो ये बात बोलेगा कि ही वॉज नॉट अंडर सीवियर स्ट्रेस, ठीक, दैट पर्सन हैज टू प्रूव दिस, ठीक, वेयर इन दिस केस स्टेट हैज टू प्रूव दिस, दैट दैट पर्सन वॉज नॉट अंडर सीवियर स्ट्रेस। ओके, तो ओके सर। अभी 2017 के बाद 309 का क्या पोजीशन है अरुण? Sir, it has become ineffective, like you said. हाँ, After that, हाँ, section 115 came into light. ओके, ठीक। यहाँ तक अब आप सबको क्लियर है एकदम से? यहाँ तक सारी बातें आप सबको क्लियर हैं? यस सर। ठीक है बेटा। अब मैं एक चीज और डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे, लास्ट केस, ठीक। आप ब्रेक ले सकते हो, इट इज 8:03 एंड we'll connect exactly at 8:08. ओके सर। ओके, बढ़ाना मत पीछे से। Samiksha, now am I visible and screen is visible? So screen is visible, but you I are am not not visible. visible. Yes. Okay, Now you are Samiksha, visible. now I'm visible. Okay, I'm saying, Yes. Samiksha, you can also have water and tea, whatever you want to, beta, Okay. ठीक, and we'll Okay. join back at 8:08. सर नोट कर लें। हाँ हाँ, नोट कर लो आप लोग, ठीक। यूथनेशिया जो है, आप इसको ऐसे डिवाइड कर लो। एक होता है आपका एक्टिव यूथनेशिया, एक होता है आपका Passive. पैसिव यूथनेशिया। यूथनेशिया, ठीक। ये एक्टिव यूथनेशिया भी दो तरीके का होता है, एक होता है वॉलेंट्री, एक होता है इनवॉलेंट्री। पैसिव यूथनेशिया भी दो तरीके का होता है, ठीक। एक होता है आपका वॉलेंट्री, एक होता है इनवॉलेंटरी, ठीक। ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वॉलेंट्री पैसिव यूथनेशिया, वॉलेंट्री पैसिव यूथनेशिया भी इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक यूथनेशिया दैट इज पैसिव इनवॉलेंट्री यूथनेशिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये था आपका, किस केस में इस चीज को हल किया गया था इससे पहले? अरुणा साहब। हाँ, इससे सर वो पहले इसमें से कौन से में डील करेगा वो केस? है बेटा, वो केस इनमें से कौन से में फॉल करेगा? वो फॉल करता है इनवॉलेंट्री पैसिव यूथनेशिया, ठीक। इससे पहले हर तरीके का यूथनेशिया जो है, चाहे वो वॉलेंट्री पैसिव यूथनेशिया था या फिर इनवॉलेंट्री, सारे हर तरीके का, मतलब ये चारों जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे। लेकिन जब आया आपका केस ये अर्ना रामचंद्र सानबोगा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, इसमें
सिर्फ और सिर्फ एक तरीके का जो है यूथनेशिया जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया, वो भी कौन सा? इनवॉलेंटरी पैसिव यूथनेशिया। अच्छा, इसमें मार्कंडे काटजू जी जजमेंट लिखने से पहले एक कोट करते हैं, ठीक? इफ आई एम श्योर कि इसमें लिखा है या नहीं लिखा है। हाँ, ये है मिर्जा गालिब का, ठीक? कहते हैं, मरते हैं आरजू में मरने की, मरते हैं आरजू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। मतलब समझ में ये आया? अलग नेक्स्ट लेवल था सर, एक बार फिर हो जाए सर। अरे यार, मैंने नहीं कहा है, ये मिर्जा गालिब साहब ने कहा है और मार्कंडे काटजू साहब ने लिखा है इस जजमेंट को। यूजुअली इन अ पर्सन, तो मैं उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा जस्टिस साहब के बारे में, बट जजमेंट्स आपको अगर इनके पढ़ेंगे, मार्कंडे काटजू साहब हुए, चंद्रचूड़ साहब हुए, फली एस नरिमन साहब हुए, ठीक, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप एंजॉय करेंगे इनके जजमेंट्स को, ठीक? एंजॉय करने का क्या मतलब है? मतलब दे आर सो कोहेसिवली रिटन, ठीक? जब मैं कोहेसिव कह रहा हूँ बेटा, तो कोहेसिव का मतलब कि इनका जो रीजनिंग होता है जजमेंट का, वो इतने प्यारे तरीके से लिखते हैं, मतलब हर चीज़ कैटेगोरिकली समझाते हुए, ठीक? और जब कोई चीज़ कैटेगोरिकली समझाते हैं, ठीक, वहाँ भी कैटेगोरिकली कैसे समझाते हैं? शुरुआत से, इंसेप्शन से, ठीक, कि कोई जजमेंट कहाँ से था, कैसे, तो हर लिंकिंग के साथ, ठीक? ऐसा सभी जस्टिसेस नहीं करते हैं, ठीक? मतलब आप जजमेंट्स बहुत सारे पढ़ोगे, बट आप पाओगे कि जैसे फली एस नरिमन साहब का जजमेंट पढ़ोगे, आप उनमें भी बहुत कोहेसिवनेस देखोगे, कि मतलब बहुत ही, चंद्रचूड़ साहब का जजमेंट पढ़ो, उसमें भी बड़ा कोहेसिवनेस मिलेगा, और मार्कंडे काटजू साहब भी इज अमंग वन ऑफ देम, ठीक? दीपक मिश्रा साहब का भी आपको जजमेंट अच्छा लगेगा, वो भी बहुत अच्छा जजमेंट लिखते हैं, ठीक? क्या हुआ था इस केस में? ये 2 जजेस बेंच थी बेटा, ठीक? इट वाज अ 2 जजेस बेंच, ठीक? मार्कंडे काटजू साहब एंड ज्ञानसुधा मिश्रा जी, ठीक? केस का नाम है अरुणा रामचंद्र सानबोगा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, ठीक? इसमें पैसिव यूथनेशिया, इनवॉलेंटरी पैसिव यूथनेशिया को कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया था, ठीक? लेकिन वहां पर भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया, उसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन दी गई, ठीक? अच्छा, डिस्कस हम गाइडलाइन को जरूर कर लेंगे, बिकॉज मैंने एक केस स्टेट में देखा था, रीसेंट स्टेट में, जहाँ पे उन्होंने गाइडलाइन के बारे में बात की है, तो मैंने गाइडलाइन को छोटा से छोटा करने की कोशिश की है, ठीक? लिख लो आप लोग। हाँ चरण, बताएं। सर कई बार ऐसा होता है कि जलने से किसी की बॉडी जो है 60% ज्यादा जल जाती है, हम्म, तो डॉक्टर्स उसको इंजेक्शन लगा के सर उसके मतलब कहते हैं कि जिया ना जिया एक बराबर ही है, आप इसको ना रखो, सो इसी में फॉलो करता है वो भी? यार चरण, डॉक्टर ऐसा कर नहीं सकते हैं। है ऐसा, मैं खुद देखा है ऐसा कि जब वो कहते हैं जिया ना जिया एक बराबर है, यदि बच भी तो गया मतलब तो। आप कह रहे हैं कि इंजेक्शन देके यस सर, यस सर, बर्निंग केस में हमेशा होता है सर, आप कभी ना देखोगे, मैं तो गया हूँ, हमारे मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर। अच्छा, अब सिंस आई हैव नॉट, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि अभी जो मैं जजमेंट में आपको बताने जा रहा हूँ, आप भी सरप्राइज करेंगे कि दिस इज नॉट एन इजी थिंग, ठीक? जो गाइडलाइन है बेटा, ठीक, वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन है, ठीक है? दैट्स नॉट एन इजी प्रोसेस। जो क्योंकि सर इनवॉलेंटरी इसमें 7 साल लगे थे। पैसिव यूथनेशिया है, दैट इज ऑल्सो नॉट एन इजी प्रोसेस, ठीक? आपको गाइडलाइन में बता ही देता हूँ, गाइडलाइन आप लिख लो, ठीक? दिस इज अ जजमेंट ऑफ 2011, ठीक? इसमें जो है लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे जब आदमी कोई होता है, ठीक, उसको विड्रॉ करने का पार दिया जाता है, लेकिन उसको विड्रॉ कैसे किया जाएगा ये लिख लो आप। द डिसीजन टू विड्रॉन, द डिसीजन टू विड्रॉन, the decision to withdrawal of life support system, the decision to withdrawal of life support system can be given
can be given only by parents. Only by parents. और अगर पेरेंट्स नहीं है then in that case or some other close relative, or some other close relative, and in absence of, जब parent भी नहीं है and any close relative is not there, and in absence of above, and in absence of above, any next friend can take the decision. Can take the decision. Plus, Prachi, yes, I am coming to you, beta. Plus, such decision can be taken by doctors, can be taken by doctors also. एक बार ये डिसीजन ले लिया गया. हाँ प्राची बताओ, देन आई विल प्रोसीड. हाँ बेटा, टेल मी. सर इसमें जो पेरेंट्स और सम अदर क्लोज रिलेटिव दिया था, क्लोज रिलेटिव्स में स्पाउसेस आएंगे? हाँ. ओके सर. ठीक. और यहाँ नेक्स्ट फ्रेंड का मतलब होता है बेटा कि जैसे ना पेरेंट है ना क्लोज रिलेटिव है, तो द फ्रेंड हु इज लुकिंग आफ्टर हिम, okay, who is taking care of that person, ठीक, in that circumstance, and court will look upon, ठीक, in all, मतलब कोर्ट बिल फाइनल डिस्क्रिप्शन कोर्ट का होगा, अभी आपको समझ में आएगा. ठीक, या तो पेरेंट या क्लोज रिलेटिव या एनी नेक्स्ट फ्रेंड, या फिर ये डिसीजन कौन और ले सकता है? डॉक्टर्स ले सकते हैं जो उसको ट्रीट कर रहे हैं. कौन डॉक्टर? कोई भी डॉक्टर नहीं, द डॉक्टर हु इज ट्रीटिंग हिम. ओके. And once this decision has been taken by either parents or doctors, then this decision, दूसरा पॉइंट करके या फिर जैसे भी आप लिखना चाहो, then this decision is to be presented, before the CJI of that state. क्लियर है यहां तक? Then this decision has to be presented to the CJI of that state. अब CJI, तीसरा पॉइंट लिख देना. The CJI will constitute the bench of two judges. The CJI will constitute bench of two judges, and these judges जो दो जज CJI चुनेंगे वो जज, ठीक, and these judges will take the advice of three expert doctors. Now the final take is to be taken by CJI on the advice of these two judges. चरण समझ में आया? आप वाली बात से मैं क्यों एग्री नहीं कर रहा था बेटा? ठीक, दैट माइट बी अ प्रैक्टिकल सिचुएशन. ठीक, उसके बारे में मुझे नहीं पता हो सकता है, बट 2011 में जो गाइडलाइन दी गई थी, आप देखो किस तरीके की गाइडलाइन है. दिस इज नॉट एन इजी प्रोसेस. ठीक, इनवॉलेंटरी पैसिव यूथनेसिया भी इजी प्रोसेस नहीं है. ठीक,
या तो डॉक्टर साहब डिसीजन लेंगे कि जो आदमी अभी वेंटिलेटर या जिस पर लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पे है उसको अब नहीं रहना चाहिए क्योंकि किसी मतलब का नहीं है, उसके सेंसेस जो हैं अब काम नहीं कर रहे हैं, ही कैन नॉट फील, ही इज जस्ट लिविंग फॉर द पर्पज, वो सांसें चल रही हैं उस लाइफ सपोर्ट सिस्टम की वजह से, बट अब उसकी कोई भी सेंस काम नहीं कर रहे हैं, नीदर ऑफ सेंसेस आर फंक्शनिंग। इन दैट केस या तो पेरेंट या फिर क्लोज रिलेटिव या फिर नेक्स्ट फ्रेंड, ठीक, जिसमें कि प्रियोरिटी कैसी होगी, अगर पेरेंट्स हैं तो ऐसा नहीं कि क्लोज रिलेटिव ने ले लिया, ठीक, और क्लोज रिलेटिव हैं तो ऐसा नहीं नेक्स्ट फ्रेंड ये डिसीजन ले लेगा। आर यू गेटिंग इट? सर ठीक, सुनीता, आई एम कमिंग टू यू। वंस दैट डिसीजन इज टेकन अप बाय, और या फिर डॉक्टर ये डिसाइड कर सकते हैं, ठीक, एक बार इन सब ने डिसीजन ले लिया तो ये डिसीजन सीजीआई के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अब सीजीआई साहब 2 जजेस का कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और वो 2 जजेस जो है 3 एक्सपर्ट डॉक्टर्स की सलाह लेंगे, ठीक। अब उनके सलाह के बाद वो दोनों जजेस जो है अपनी एडवाइस टेंडर करेंगे सीजीआई साहब का, और सीजीआई साहब फाइनल डिसीजन देंगे कि वेदर इनवॉलेंटरली passive euthanasia is to be allowed or not. You got this or not? Got it. ठीक, ये कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन बेटा अरुणा रामचंद्र सानबर्गर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में दिया गया था, ठीक, जिसमें पैसिव इनवॉलेंटरली यूथनेशिया को कॉन्स्टिट्यूशनली करार दिया गया था, ठीक, लेकिन विद दिस फॉलोइंग गाइडलाइंस। हाँ सुनीता, आप बताएं बेटा। आप सर जो पूछना चाहती थी वो क्लियर हो गया मेरा, बट मैं सर की बात से कुछ पूछना चाहती थी। जैसे ये बता रहे हैं कि डॉक्टर ऐसे इंजेक्शन लगा देते हैं, तो वो तो सर अगर वो प्रायर कोर्ट की परमिशन के अगर ऐसे करते हैं तो वो तो फिर इलीगल होएगा ना। हाँ, मतलब अब प्रैक्टिकलिटी में क्या चल रहा है बेटा, इसीलिए मैंने कहा कि ये इतना आसान नहीं, ठीक, बट चरण इज सेइंग दैट ही हैड सीन सम इंस्टेंसेस वेयर दिस हैज बीन डन, ठीक, सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस फैक्ट बेटा, तो आई कैन नॉट कमेंट अपॉन दिस, ठीक। अगर कोई शिकायत करता है सर फिर तो हाँ, दिस हैज टू बी फॉलोड बिकॉज दिस हैज बीन अ लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक, तो दैट गाइडलाइन कैन नॉट बी डिफाइड, ठीक, until and unless, ठीक, legislature come up with guideline, proper guideline। जैसे मर्जी सिचुएशन हो, बट मतलब बंदे को बिना कोर्ट की परमिशन नहीं मार सकते, जैसे ये इस केस में बताया गया है। एग्जैक्टली, ठीक, हो सकता है वो रिपोर्ट में लिखते हो कि he has died due to succumbing of the wounds। हाँ, ये सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक। अब आई एम नॉट वेल अवेयर अबाउट द फैक्ट्स बेटा, तो आई कैन नॉट कमेंट अपॉन दिस, बट बिकॉज अगर आप सोचो ये वॉलंटरी पैसिव यूथनेसिया अगर आसान कर दिया जाएगा ना बेटा, ठीक, तो फिर कितने डेथ्स कॉज किए जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। प्रॉपर्टी मैटर्स में सब में हर कोई इसी को अपनाएगा, ठीक, दिस वुड बिकम ए वेरी इजी वे, ठीक, टू एक्वायर प्रॉपर्टी। जो सर कह रहे हैं, हाँ बेटा, सर जो सर कह रहे हैं इस चीज को हम क्लियर कैसे करेंगे, क्योंकि हम अभी सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं कि शायद डॉक्टर के पास ऐसा कुछ पावर होगा या वो कोर्ट में ऐसा लिख के दे सकते हैं। अब देखो जो लॉ है वो मैंने बता दिया, ठीक। सर इस केस में जो अरुणा रामचंद्र थी उनकी ना कोई पेरेंट्स थे ना कोई क्लोज फ्रेंड था, कोई भी नहीं था, इसलिए ये मामला कोर्ट में गया था। एंड देन और बाकी जो होता है सर वहाँ पेरेंट्स डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ बहुत गंभीर स्थिति है तो ठीक है, अगर नहीं बच सकता है तो ऐसा डिसीजन, तो सर इसलिए कोई कंप्लेन नहीं होता, कोर्ट तक मामला जाता ही नहीं है। ओके, ठीक, तो बेटा यही है कि मतलब लॉ ये है, लिखना आपको ये है और ये सच्चाई है, बाकी ग्राउंड लेवल पे क्या है क्या नहीं है, आई एम नॉट वेल अबाउट दीज फैक्ट्स, ठीक। अगर मुझे मौका मिला, टाइम मिला तो आई विल सी इनटू इट कि क्या सच्चाई है क्या नहीं है, ठीक। रेदर आप लोग लॉ यही है एंड दिस हैज टू बी फॉलोड इन एनी सर्कमस्टांसेस, ठीक। सर मैंने भी ऐसे देखा कि मेरे सर है जजबल फ्रेंड थे मेरे, उसके मतलब उससे पहले सर उनको ना लेके गए थे वहां पर कि उसकी जो डायग्नोसिस लिखनी है आपने, तो कोर्ट में उनके साथ चला गया, उनकी नोट करने के बाद सर उसको वो डॉक्टर ने कहा
ऐसे ही सर उसको इंजेक्शन लगा दिया। ओके बेटा, ठीक। बट लॉ इज दिस चरण, दिस हैज टू बी फॉलोड एंड दिस हैज टू बी केप्ट इन माइंड, ठीक। दिस इज द लॉ, ठीक। अच्छा, एक केस और है इस पर जो 2018 में आया था, ठीक, जो एज अ कंक्लूजन आप लिख सकते हैं, जिसमें भी इनवॉलेंटरी पैसिव यूथनेशिया को जो है एक तरीके से रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक। केस का नाम है बेटा कॉमन कॉज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। कॉमन कॉज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, ठीक। 2018 का केस है बेटा। ये जजमेंट जो है 5 जजेस बेंच है ये, दिस इज अ 5 जजेस बेंच, ठीक। जजमेंट वाज डिलीवर्ड बाय ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा, ठीक। कंक्लूजन पार्ट के लिए आप लिख लो इसमें। और ये भी अनोनिमस डिसीजन था, सब एग्री किए थे इसमें भी, ठीक। दिस इज आल्सो ऑन इनवॉलेंटरी पैसिव यूथनेशिया, ठीक। व्हाट वाज हेल्ड इन दिस केस यू कैन राइट इट, ठीक, एंड दैट यू कैन use in your conclusion part when you are writing for passive euthanasia. So could you show that PDF once again? हाँ sure बेटा। It was held in this case, the या फिर the honorable apex court held in this case that every person has a right to die with dignity. Right to die with dignity, आगे यहीं तक ऐसा नहीं है, इसमें आगे भी है, फुल स्टॉप नहीं है। A natural death, अगर आप यहाँ यहीं तक लिखोगे तो क्या इसका मतलब हो जाएगा? सर it will means like right to life include right to die, वही हो जाएगी तो बात। पी रथिनम वाली बात हो जाएगी, ठीक। पूरा जो यहाँ तक पूरा हिस्ट्री इवॉल्व करके आया सब खत्म हो जाएगा, ठीक। दैट एवरी पर्सन हैज अ राइट टू डाई विद डिग्निटी, अ नेचुरल डेथ, and it is also part of right to life and liberty under Article 21 of the Constitution. If someone is suffering, suffering, I'm saying, this is if someone is surviving, with the help of advanced medical help, then he does have the right to end his life
end his life by removing those support. एक चीज तो मैं मिस ही कर दिया आप लोगों को बताना. अच्छा, ये आप लोगों को ये तो पता है कि एक्टिव यूथनेशिया और पैसिव यूथनेशिया में डिफरेंस क्या है? नो और एक्टिव एक्टिव यूथनेशिया एक्टिव यूथनेशिया में बेटा आपको जो है ड्रग दे दिया जाता है, या ऐसा मतलब सुई लगा देंगे या ऐसी आपको दया दे देंगे जिसमें उस दवा या फिर उस ड्रग की वजह से आपकी डेथ कॉज हो जाएगी. ठीक, इंजेक्ट कर देंगे, इंजेक्शन लगा देंगे. पैसिव यूथनेशिया में आपको जो मेडिकल लाइफ सपोर्ट सिस्टम मिल रहा था उसको रिमूव कर दिया जाएगा. यहाँ पर जो पैसिव यूथनेशिया होती है, यहाँ पर मेडिकल जो सपोर्ट है उसको रिमूव कर दिया जाता है और डेथ आपकी नेचुरल होती है. यू आर गेटिंग इट? ठीक, यहाँ जो डेथ है आपकी वो एसिलरेट कर दी जाती है. कैसे? ठीक, थ्रू अ ड्रग और एन इंजेक्शन. ठीक, आप समझ रहे हैं? मतलब समझ गए? एक्टिव पैसिव में एक में मेडिकल सपोर्ट जो है आपका, मेडिकल जो हेल्प है, एडवांस मेडिकल सपोर्ट सिस्टम, उसको हटा दिया जाता है. पैसिव में आपकी जो डेथ होती है वो नेचुरल डेथ होती है. ठीक, एक्टिव में आपको ऐसा कोई ड्रग या इंजेक्शन दे दिया जा सकता है जिससे आपका एसेलरेट कर जाए और आप इजीली डेथ कॉज कर जाएं आपकी. समझ रहे हैं? वहां पे आपको डेथ कॉज करने वाली इंजेक्शन या ड्रग दिया जाता है. पर पैसिव यूथनेशिया में ऐसा कुछ नहीं होता है. जस्ट मेडिकल हेल्प और एडवांस मेडिकल हेल्प सपोर्ट सिस्टम इज रिमूव्ड. यू गॉट इट एवरीवन? जी सर. यस सर. यस सर. और बेटा वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री का मतलब आप समझ रहे हो ना? वॉलेंट्री मतलब मैं खुद, ठीक. इनवॉलेंट्री मतलब मैं खुद नहीं कर रहा हूं. यू आर गेटिंग इट? वॉलेंट्रली यू डू इट willingly. Involuntarily, ठीक, you are not doing as per your willingness. Got it? ठीक. Yes, sir. Yes, sir. ठीक. So I have the right to end his life by removing those support. Moreover, engaging the life support. Moreover, engaging the life support system unnecessarily. Unnecessarily moreover, engaging the life support system unnecessarily for one may deny right to life to another person. ठीक, ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी को लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है अननेसेसरीली दे रहे हैं, जहां आपको पता है कि अब उसके सेंसेस काम नहीं कर रहे हैं, ठीक, his senses are not working, they are not giving any kind of sense to him now. ठीक, अगर आप उसको प्रोवाइड करके किसी और को जिसको उस लाइफ सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है, ठीक, उसको ना देकर किसी ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं जिसको अब देने का कोई मतलब नहीं है, तो वहां पर आप जिस आदमी को नहीं दे रहे हैं उसको राइट टू लाइफ डिनाई कर रहे हैं. गॉट इट? दिस वाज हेल्ड इन दिस कॉमन केस रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ठीक,
दीपक जस्टिस मिश्रा ने इस केस को डिलीवर किया था। जजमेंट वाज रिटन बाय हिम। ठीक, तो राइट टू डाई इज नाउ क्लियर। हाँ प्राची बताएं। Sir, I'm not sure. Aruna Shanmugh case में was there something said about euthanasia being provided only to people who are in vegetative state or brain dead or something like that? Yeah, it was. Okay. So that will also be part of the guidelines, no? हाँ मतलब कह सकते हैं, उस पे ये कहा गया था कि जिनकी सेंसेस जो हैं ठीक अब काम नहीं कर रहे हैं, ठीक, नाउ ही कैन नॉट फील एनीथिंग, ठीक, ही कैन नॉट, देयर इज नो सेंस, ठीक, ही इज जस्ट लिविंग फॉर द पर्पज ऑफ लिविंग एंड नथिंग मोर देन एल्स, ठीक, उनके लिए था। Okay, sir. ठीक, एंड ऑल दिस हैज टू बी, मैंने उसको इस पार्ट में इसलिए नहीं लिखा है बिकॉज those two judges take the decision, take the advice of the expert doctors. Right, sir. Okay, so that's why I did not went into that a bit detail. वो उससे कवर हो जा रहा था। ठीक, Okay, sir. हाँ, तो Thank वो you. बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसी वजह से मैंने उसको सरल कर लिया, बिकॉज you won't be having that much of time जहाँ पे आप ये सारी चीजें पूरा एक्सप्लेन कर पाए, vegetative state and everything. Got it? Yes. So Thank if you, you sir. will write that only, that will cover that thing, Prachi. Okay. Yes, बेटा। तो राइट टू डाई इज क्लियर। ठीक, पी रतिनम से स्टार्ट हुआ, वहां के बाद दूसरा ज्ञानकौर, ज्ञानकौर के बाद आपका अरुणा शानबोगा, आफ्टर दैट दिस कॉमन कोच। ठीक, दिस वाज द ट्राइजेक्टरी। ठीक, आपको 309 का भी पोजीशन अब क्लियर है। ठीक, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक, बट इन अ वे इट इज इनइफेक्टिव। सबको क्लियर है बेटा? सर एक प्री में क्वेश्चन आया था, किस कंट्री में राइट टू डाई सर है, मतलब वैलिड है? कई सारी कंट्रियां हैं अब तो, देयर आर मेनी कंट्री। नीदरलैंड हुआ आपका, ठीक, नीदरलैंड इज नॉट द ओनली कंट्री, बहुत सारी कंट्री है आज के समय में। आई थिंक मोर देन 6 स्टेट, 4 or 6 स्टेट्स आर देयर वेयर राइट टू डाई पैसिव यूथनेशिया भी अलाउड है। ठीक, दैट्स द पार्ट ऑफ जीएस। ठीक, आई मे नॉट बी एग्जैक्टली करेक्ट in the number, but there are many states now. ठीक, आप वो चेक कर लेना बेटा, do not rely on this answer of mine. ठीक, but there are more than one state that I am sure. ठीक, it might be 4 to 6 states are there. Sir, if you don't mind, I have a practical situation I wanna like ask you. हाँ हाँ प्लीज गो अहेड। सर लेट्स अस्यूम अगर कोई बंदा को कोई किडनी में प्रॉब्लम होती है, वो डॉक्टर के पास जाता है, ऐसा पता चलता है कि लाइक उसकी किडनी फेल हो चुकी है, तो उसे डायलिसिस सिस्टम पे रखना होगा, पर लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं, तो इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन? अगर उसे हटाते हैं तो वो बंदा मर जाएगा, तो सर रख भी नहीं सकते हैं क्योंकि पैसे की प्रॉब्लम है, तो सर क्या मतलब क्या बनेगा? ये काफी डिलेमा लगती है मेरे को, दिमाग में आती रहती हैं ऐसी चीजें। ठीक, ऐसे सिचुएशन में अरुण देखो, पहली बात तो जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स होंगे वो अलाउ नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ वो आदमी इस स्टेट में नहीं आया है, ठीक, डायलिसिस वाले में, जहाँ पे उसकी सेंसेस ना काम कर रहे हैं। ठीक, और अब राइट टू हेल्थ जो है अरुण ना, दैट हैज बीन नाउ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जहाँ पे राइट टू हेल्थ बोला गया है, इट्स अ काइंड ऑफ, in a way it's obligation upon the state. But sir, private hospitals तो बिना पैसे के बिना। हाँ exactly, I am coming to your point. तो वहाँ पर जो कुछ aid and help दी जा सकती है स्टेट के द्वारा दी जाएगी, ठीक, बट यूथनेशिया तो अलाउ नहीं होगा अरुण in any circumstances. ओके सर। हाँ हाँ शालिनी बताएं बेटा। अरुणा रामचंद्र केस में कहा गया कि डेथ के लिए इतने सारे टर्म्स को फुलफिल करना होगा तभी परमिशन मिलेगा। दूसरे कॉमन केस में कहा गया है कि अगर कोई दूसरा आदमी मर रहा है तो उस जगह पे ऐसा कर सकते हैं,
तो सर ये डिसीजन कौन लेगा? मतलब नहीं, सर अगर वो कोई गाइडलाइन एक फॉलो होगी शालिनी, वो गाइडलाइन फॉलो होगी। इट इज नॉट लाइक कि दूसरा मर रहा है तो उसको हटा देंगे, नहीं। द प्रोसेस हैज टू बी फॉलोड। इट इज सेड कि अगर आप उस पैसिव यूथेनेशिया, जो इनवॉलेंटरी पैसिव यूथेनेशिया है बेटा, उसको बैक करने के लिए ये स्टेटमेंट दिया गया है कि अगर ऐसे सिचुएशन में, ठीक, जहां पे एक आदमी के सेंसेस काम नहीं कर रहे हैं, ठीक, नाउ नथिंग इज देयर लेफ्ट विद हिम, ठीक, आप उसको हेल्प सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कराए हुए हैं, ठीक, और एक ऐसे आदमी जिसको जरूरत है उसे नहीं मिल पा रहा है, ठीक, तो इन अ वे इट इज लाइक कि जिसको जरूरत है आप उसे नहीं दे रहे हैं, तो उसको राइट टू लाइफ आप डिनाई कर रहे हैं, ठीक। तो ये दैट इज नॉट अ टूल दैट हैज टू बी यूज्ड एज, ठीक, ये एक उसको बैक करने के लिए एक स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक, जहां पे वो गाइडलाइन नहीं खत्म हो जा रही, ठीक। 2018 में ऐसा नहीं कहीं कहा गया कि गाइडलाइन खत्म हो जाएगी। दे आर सेइंग कि नो नो, ठीक, ऐसा किया जा सकता है, बट पैसिव हटाया जाएगा, वो गाइडलाइन फॉलो होगी उसमें भी बेटा, ठीक। इट इज नॉट लाइक कि अदर मर रहा है तो उन्होंने कहा नहीं कि वो तो मर रहा था, हम इसको दे देंगे, ऐसा डिसीजन इनको नहीं दिया जा सकता है ना, तो सारे टर्म आर्बिट्ररी हो एंड जाएगा। कंडीशन फुलफिल होने के बाद ही होगा जो हाँ भी बेटा, होगा। वो उसमें बाद ही होगा, ठीक। वो रीजनिंग दे रहे हैं, जजमेंट में रीजनिंग दे रहे हैं कि अगर किसी को जरूरत है आप उसको ना देके किसी ऐसो को दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप राइट टू लाइफ उसे डिनाई कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में कहा गया है कि कोर्ट विल अलाउ, ठीक, कि अलाउ करेगी कोर्ट आफ्टर लुकिंग इनटू, बट वो ड्यू प्रोसीजर फॉलो होगा। तो सर इट्स ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट, नॉट द हॉस्पिटल और डॉक्टर्स। एग्जैक्टली, कहीं ना कहीं, ठीक। और जो मुझे लगता है कि सही है, ठीक, बिकॉज इंडिविजुअल्स, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर ये अलाउ हो गया ना, तो दैट वुड लीड टू अनदर वे, ठीक। तो सर इस ऐसी कोई सिचुएशन अगर अकर हो रही है तो उसमें उस टाइम पे कोई इमरजेंसी कोर्ट में अप्लाई किया जा सकता है, मतलब लाइक नाइट, जैसे रात के टाइम हो रहा है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो रात को ही कोर्ट में जाया जाए, नहीं नहीं, ऐसा ना करा जाए कि एक मंडे का वेट करेंगे। नहीं, मतलब इतना ज्यादा स्पीडी तो नहीं दिया जाएगा अरुण, ठीक, बिकॉज इतने मच इम्पोर्टेंस के लिए नहीं है, ठीक। जिसके सेंसेस काम नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें, हाँ, लेकिन इसको टेकअप करेगी कोर्ट, ठीक। कोर्ट विल नॉट टेक मच टाइम इन सच, ठीक, बिकॉज सीजीआई जो है वो केसेस को, सीजीआई जो है वो रोस्टर का मास्टर होता है, तो वो अब इसी बेसिस पे केसेस को लगाते हैं कि कौन कितना इम्पोर्टेंट है बेटा, ठीक। तो फॉर श्योर इट विल नॉट टेक मच टाइम, कोर्ट इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, ठीक, बट दैट्स नॉट एन इजी प्रोसेस, ठीक। तुम इसको अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लगा के देखो ना अरुण, ठीक। तुम अगर ये चाह रहे हो बेटा कि दिस हैज टू बी मेड एन इजी प्रोसेस, तो आप सोच नहीं सकते कि इसका कितना मिसयूज हो सकता है, ठीक। अगर मैं आपको ये आज के टाइम में आर्बिट्ररी पावर दे दूं, ठीक, कि आप डिसाइड करो, ठीक, या डॉक्टर्स डिसाइड करें, ठीक, हो सकता है कि मैं 2 दिन ऐसे मेंटल स्टेट में ना रहूं जहां पे मैं कुछ डिसाइड कर पा रहा हूं, वहां तो आप मार दोगे मुझे। बट सर देयर विल बी सम डिसाइडिंग अथॉरिटी ना। हाँ, तो इसीलिए तो दिस प्रोसेस, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड ना, कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन हैज बीन प्रोवाइडेड ना, ठीक। अगर आर्बिट्ररली आपको या फिर डॉक्टर साहब को दे दिया जाए, ठीक, हाँ, कल का लेजिस्लेचर आ जाती है कि एक ऐसे और इसको बेटर बनाने के लिए एक कमेटी बना देती है, ठीक, या फिर एक ऐसा कोई ट्राइब्यूनल सेटअप कर देती है, नॉट कमेटी, एक कोई ऐसा क्वासी जुडिशियल बॉडी ट्राइब्यूनल सेटअप कर सकती है बेटा, ठीक, जहाँ पे इसको डायरेक्टली टेकअप किया जाए, जहाँ पे हाई कोर्ट के पास जाने की जरूरत ना पड़े, ठीक। दिस कैन बी डन बाय द लेजिस्लेचर, ठीक। दैट्स द मैटर ऑफ लेजिस्लेटिव पॉलिसी, यू वही आर पूछ गेटिंग रहा मी। सर, कभी मका ऐसा कुछ हो मुझे हाँ ना बिल्कुल पता उस बिल्कुल बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज पॉसिबल, ठीक। दैट्स द मैटर ऑफ लेजिस्लेटिव पॉसिबल पॉलिसी, ठीक। दिस कैन बी डन, ठीक। क्वासी जुडिशियल बॉडी बना दी जा सकती है, बिल्कुल बना सकता है आपका लेजिस्लेचर बेटा, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक। या फिर आप देखो अगर कहीं कोई ऐसा मैकेनिज्म वेस्ट में प्रोवाइडेड हो, ठीक, तो दैट कैन ऑल्सो बी
undertaken? नहीं सर, वेस्टर्न कोर्ट्स में तो होता है अमेरिका टाइप में, वहां पे तो रात को ही कोर्ट लग जाती है, तभी के तभी साथ के साथ। अच्छा, यूथेनेसिया के केसेस में? यस सर, यूथेनेशिया या फिर लाइफ एंड डेथ, जहाँ पे जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए होता है, अच्छा अच्छा, उनकी होती है ना वो लिस्ट होती है ऊपर नीचे, जिसमें कुछ केस हो जाए तो ठीक। तो इसमें भी कॉल टेकअप सीजीआई कर सकता है, ठीक, कि एसेंशियली कितना एसेंशियल है डिसाइड करना, दे कैन डिसाइड, ठीक। बट मैंने एज सच कोई नाइट कोर्ट इसमें ऐसे किसी केस में देखा नहीं है, ठीक, इंडिया में। ठीक है सर, कंसेप्ट हाँ, इज वेरी क्लियर नाउ। ओके कभी बेटा। किसी टीचर ने इतना क्लियर बताया नहीं आज तक जितना आपने अभी बताया है। हाँ, तो ये लेजिस्लेटिव पॉलिसी है, बिल्कुल बन सकते हैं इसमें, ट्राइब्यूनल बन सकते हैं। तुम देखो ऐसे बहुत सारी चीज़, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल टेक अप द एग्जांपल ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस बेटा, इसको एग्जांपल बस मोटा मोटा आप सब समझ लो। विशाखा गाइडलाइंस आई थी, यस सर। ठीक बेटा। ये विशाखा गाइडलाइंस जो है कोर्ट ने दिया था, ठीक। इसी को में कहा था कोर्ट ने कि लेजिस्लेचर जो है अपने कोई एक्ट बना सकता है फॉर द सिमिलर, ठीक। अब बाकायदा सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक एक्ट बना हुआ है, जब तक वो नहीं बना था तब तक पॉलिसी से चल रहा था, ठीक। तो सेम इज इन द केस ऑफ अरुणा शान होगा, वहां पे भी लेजिस्लेचर के पास है भाई, दे कैन मेक अ सच पॉलिसी और एक ट्राइब्यूनल का सेटअप कर सकते हैं। यू आर गेटिंग मी, जहां पे इसको स्पीडी मैनर में टैकल किया जा सकता है, टेकअप किया जा सकता है। तो ये मैटर लेजिस्लेटिव पॉलिसी का है। अब कोर्ट तो कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकती ट्राइब्यूनल ना बेटा, ट्राइब्यूनल कोर्ट तो कॉन्स्टिट्यूट कर नहीं सकती है अरुण, ठीक। ये तो आपका लेजिस्लेचर करेगा ना, तो दैट्स द मैटर ऑफ लेजिस्लेटिव पॉलिसी बेटा। ओके सर। या सबको समझ में आ गया बेटा, राइट टू डाई क्लियर है एकदम यस से? सर, बिल्कुल क्लियर सर। क्लियर। अच्छा, अब है आपका बेटा आर्टिकल 21 ए, अनुच्छेद 21 ए किसकी बात करता है बेटा? राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन, एक बार देख लेते हैं। लेट्स सी व्हाट डज आर्टिकल सेज। स्ट्रेंथ, कोई अभी तुरंत गया? क्लासेस लंबी लग रही हैं आप लोगों को क्या? नो सर। जब मजा आ रहा है फिर लंबी नहीं लगती। कोई गया चरण छोड़ के क्लास अभी तुरंत? जाने वालों को कौन रोक सकता है? सही बात है अमित साहब, जाने वाले को कौन रोक सकता है, ईश्वर डिसाइड करेंगे। सर आज का तो पूरा दिन ही इसी स्टेटमेंट पे था। हाँ एग्जैक्टली। सर हाँ हाँ बेटा। सर थोड़ा सा उसमें बता दो आप, जो एक हैंडकफिंग वाला भी है ना, राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग, और एक जो टेलीफोन टैपिंग वाला है जो राइट टू प्राइवेसी में है, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता दो। राइट टू प्राइवेसी आप लोग चाह रहे हैं तो एक लेक्चर उसमें लगेगा, कहो तो मैं डिस्कस कर लूँ, एक नहीं तो कम से कम 30 मिनट का। आज नहीं स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं अगले लेक्चर में स्टार्ट कर लूँगा, ठीक। कल करेंगे। यस सर, कल राइट टू प्राइवेसी एक बार करते हैं। चलो ठीक है, राइट टू प्राइवेसी भी कर देता हूँ, ठीक। वैसे मैंने कोई क्वेश्चन देखा नहीं था, इस वजह से मैंने छोड़ दिया था, बट लेट्स डिस्कस दिस, गुड, ठीक, वी विल डिस्कस दिस, राइट टू क्योंकि इसके प्राइवेसी डिस्कस केसेस कर ना लेते काफी आते हैं सर। हैं, ठीक ठीक। सर और सही बात है, आईटी का आजकल ज्यादा चल रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेट करके क्वेश्चन आ सकता है आगे। ओके बेटा, आई विल डिस्कस राइट टू प्राइवेसी, आई विल डिस्कस। अच्छा, ये हैंड कफिंग वाला जो है बेटा, ठीक, this is has been said in several cases that is this is inhuman, ठीक। you cannot treat a man as an animal, ठीक।
तो अनटिल एंड अनलेस, ठीक, आपके पास कोई रीजन नहीं है, ठीक, जहां पे आप इस चीज को प्रूव कर पाओ कि बिना हैंड कफिंग के जो है दैट पर्सन और दैट एक्यूज पर्सन कैन नॉट बी कंट्रोल, वहां पे हैंड कफिंग जो है अलाउड नहीं है, ठीक। दिस हैज बीन held in several cases. This is inhuman in itself. हाँ प्राची। Sir, my doubt goes back thoda, so you can finish this and then I'll ask. Okay. बताएं प्राची। Sir, A.K. Gopalan was 6 judges bench, so it was a unanimous decision. A.K. Gopalan 5:1 था। Sir, who was the dissenting judge? फजल अली, सैयद जस्टिस फजल अली। Okay, sir. मैंने ये बताया नहीं था क्या फजल अली वाला साहब डिसेंटिंग ओपिनियन, ठीक। बिकॉज प्राची फजल अली साहब का जो डिसेंटिंग ओपिनियन था ना बेटा, पीएन भगवती साहब ने लेटर ऑन सारे केसेस में उसी को एक वाइडर पिक्चर में पोर्ट्रे किया, Right. ठीक। देयर वाज नथिंग न्यू, ठीक। व्हाट फजल अली साहब स्टेटेड इन हिज डिसेंटिंग ओपिनियन, ठीक, दैट प्रिंसिपल वाज ओनली वाइडेंड, ठीक, वही प्रिंसिपल, ठीक। उसी आप उसका छाप अपने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन केस में भी देख सकते हो, फंडामेंटल राइट केस में भी देख सकते हो, आईआर कोहेलो में भी देख सकते हो, और जो हमने डिस्कस किया है उसमें भी देख सकते हो। ओके प्राची, आपने फिर से हैंड रेज Yes. किया? नहीं सर, बताएं। वो पहले का है। ठीक, तो प्रिवेसी वाला मैं डिस्कस कर लूंगा, ठीक। अच्छा, कल क्लास नहीं होगी, ये वाला मंडे को हमने एक आर का लिया था बिकॉज ऑन बोर्डिंग थी, और एक दिन इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, इस वजह से आज थर्सडे वाली क्लास लगी है। ओके, तो मंडे में अपनी कोई क्लास नहीं होगी, वो मतलब अगले कल क्लास नहीं है, अब हम सीधे मंडे में मिलेंगे। सर कल कोई भी क्लास नहीं है। सैटरडे को कल हिंदी वालों की हिंदी वालों के साथ मेरा थोड़ा डिस्कशन है, क्लास नहीं है मॉर्निंग में। सर मॉर्निंग कल में फ्राइडे है तो कल डिस्कशन होगा और सैटरडे को डिस्कशन होगा। अब आप लोग अगर कंफर्टेबल हो तो मैं तो कल ही कर लूँ। ओके सर, ठीक है। तो सर हम लोग ग्रुप में मैसेज कर देते हैं इस बारे में, या फिर बाकी लोग तो यहीं पे हैं जो लोग जैसा कहे सर। हाँ नहीं सर, कल ही कर लेते हैं फिर। कल ही अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो कल ही कर लेंगे, ठीक। सर बिकॉज हम सेम लोगों को टाइम तो 10 बजे। ओके, नॉट 10 o'clock, आई वोंट बी फ्री। इसी शाम में कर लें? Yes sir. यस सर, शाम को कर लेते हैं। तो शाम में, ठीक है, ओके डन। हमारी क्लास नहीं है कल शाम को। नहीं नहीं नहीं, इंग्लिश वालों आप लोगों की नहीं है बेटा, ये हिंदी वालों को कुछ डाउट है रिगार्डिंग देयर असाइनमेंट एंड एवरीथिंग, उनको आंसर क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं कुछ उसके रिगार्डिंग, इनके वो कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं है, संविदा उम्मीदा का इनका कॉन्ट्रैक्ट का कुछ है बेटा, ठीक। और इनका कुछ टर्मिनोलॉजी और बाकी सारी चीज़ों के रिलेटेड है, हम कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करेंगे सुनीता बेटा उसमें, क्लियर है। और प्राइवेसी और ये आपका पूरा मैं एक पूरे लेक्चर में या फिर आधे लेक्चर में कर लेंगे, ठीक। मंडे को सर? हाँ हाँ मंडे में फॉर श्योर। हाँ मैं बताएं सर मैं ये पूछ रहा था, हाँ। मैं सर उत्तराखंड वाला एग्जाम देने जा रहा हूँ, हाँ कोई ऐसा बता दो कुछ अलग से कोई सलाह हो आपके पास। मेरी अलग से सलाह है, इतने कम समय में बेरेक के इंडेक्स पढ़ लो। ठीक अमित, डू नॉट रीड एनी कॉन्सेप्ट और एनीथिंग बेटा, जस्ट रीड बेरेक इंडेक्स, सारे जितने भी एक्ट आ रहे हैं उनके इंडेक्स पढ़ लो, डू नॉट गो इनटू डेप्थ, ठीक। इंडेक्स रीडिंग करके जाओ, दैट्स इट, अब कुछ मत पढ़ो और रिवाइज इट, इंडेक्स पढ़ते रहो कि किस क्लॉज में क्या है, किस सेक्शन में क्या है, डू इट, दैट्स इट। और जीएस अगर आ रहा हो जितना पार्ट, शायद इंटरनेशनल लॉ पूछा जाता है आई थिंक, इंटरनेशनल जीके, ठीक। हाँ तो आप वो पढ़ लो, ठीक। सिर्फ अमित ही देने जा रहे हैं और भी कोई दे रहा है?
नहीं है सर उसको कोई छाया ओके नहीं। ओके ओके ग्रेट। एक बार रीडिंग कर लें आर्टिकल 21 की। आई जी वांटेड सर, टू, जी जी। ठीक, बिकॉज टॉपिक में टाइटल में आज वही था। तो आर्टिकल 21A बेटा इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। दिस हैज बीन एडेड बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक, am I correct? It's 86 only, na? Yes, sir. Okay, it was added by 86th constitutional amendment beta. ठीक, what does article state? It says the state shall provide free and compulsory education to all children of the age 6 to 14 years in such a manner as the state may by law determine. ठीक, तो यहाँ पर स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन डाला जा रहा है बेटा। क्या ऑब्लिगेशन डाला जा रहा है कि जो भी बच्चा 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु तक का है, ठीक, उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? ये स्टेट लॉ बनाकर डिसाइड करेगी। अच्छा, तो क्या यहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन की बात की जा रही है? हाँ सर। Is it talking about primary education? अच्छा ठीक है, मेरा आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन है, ठीक, जो कि आप लोगों के लिए एक तरीके का होमवर्क भी है मेरे तरफ से, ठीक। और मेरे को पता है, पूरा विश्वास है कि आप लोग मेरे पढ़ाने के बाद इतना थक जाते हैं, ठीक, कि कॉपी किताब खोल के ही नहीं देखते हैं। मेरा सर ऐसा नहीं है, आपके जाने के बाद पढ़ाई हो पाती है। मेरा प्रश्न ये है बेटा, मैं चाहता हूं कि जितने इंथुजियाज्म से मैं पढ़ाता हूं उसका 100 गुना इंथुजियाज्म आप में हो, ठीक, तब मजा आता है। ठीक, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ बेटा, जैसे कि यहाँ बात की गई है 6 to 14 ईयर्स, ठीक, 6 से 14 साल के फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई है, ठीक। तो प्राइमरी वाला शब्द तो कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक। इट सेज फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14 ईयर्स। तो अगर 14 साल में मैं 10th कर ले रहा हूँ, 12th कर ले रहा हूँ, या ग्रेजुएशन में भी आ जा रहा हूँ, तो वो भी मिलना चाहिए मेरे को ना, अगर मैं बेयर रीडिंग करता हूँ तो। ठीक, तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आर्टिकल 21A में क्या प्राइमरी एजुकेशन की बात की गई है, या 6 to 14 ईयर्स तक के एज तक आप कोई भी एजुकेशन करेंगे, जिस भी आप प्राइमरी में होंगे, सेकेंडरी में होंगे, आपको दिया जाएगा। ठीक, दूसरा एक क्वेश्चन मेरा आपसे और है बेटा, ठीक, कि यहाँ कहा जा रहा है द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन। ठीक, तो यहाँ ऑल चिल्ड्रन का क्या मतलब है? ऑल चिल्ड्रन का मतलब कि सिटीजन्स और नॉन सिटीजन दोनों, मतलब जैसे किसी सिटीजन का बच्चा भी बच्चा है, किसी नॉन सिटीजन का भी बच्चा बच्चा है। ठीक, तो यहाँ जो ऑल चिल्ड्रन है, इसको कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाना है? कोई बाहर से आया है टूरिस्ट, उसका बच्चा भी बच्चा है। ठीक, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ ऑल चिल्ड्रन का क्या मतलब है, इसको क्या कॉन्स्टिट्यूट करूँ मैं? सिटीजन, नॉन सिटीजन, या सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों? आपके लिए 2 होमवर्क है मेरे पास। पहला ये कि आप मेरे को ये बता देना, ठीक, कि 6 to 14 ईयर्स वाले में मैं कहाँ तक पहुँच रहा हूँ, दैट इज इमटेरियल, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगा, या फिर सिर्फ प्राइमरी लेवल की बात की गई है। दूसरा चीज, यहाँ चिल्ड्रन का मतलब सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों होंगे, या फिर सिर्फ सिटीजन्स होंगे? मेरा क्वेश्चन समझ में आया आपके? मतलब लेजिट क्वेश्चन है मेरा। यस समझ गए सर। दोनों होंगे सर, सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों ऑल चिल्ड्रंस में आएंगे सर। और 6 to 14 में सर प्राइमरी ही होगा, क्योंकि सर 10th तक एक एज लिमिट होता है कि 14 साल 6 महीना ऐसा कुछ होता है सर। सालिनी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन फिर है। जब आप कह रहे हो सिटीजन नॉन सिटीजन, ठीक, तो कल का कोई टूरिस्ट आता है, ठीक, 1.5-2 महीने का टूरिस्ट वीजा लेकर बेटा, ठीक, नहीं सर, वो यहाँ रहते हैं तो आप उसको कैसे डिनाई करोगे? आप तो सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों को कह रहे हो ना, फिर वो आया है, उसका बच्चा भी चिल्ड्रन हुआ ना, ठीक, ऑन दैट बेसिस आई एम, हाउ यू विल डिमार्केट बेटा, दैट आई एम आस्किंग। ठीक,
तो उसको ध्यान से दूसरा करना होगा। ये जो आप कह रहे हो कि प्राइमरी वाला, उसमें भी मेरा एक क्वेश्चन है, लेजिट क्वेश्चन वो भी है मेरा, ठीक। आपके पास आंसर होगा तो मुझे देना जरूर, ठीक। कि जब आप कह रहे हो कि देयर इज अ लॉ, ठीक, दैट सेज कि 10th तक के लिए एक डेफिनेट एज होती है, क्या ऐसा यूनिफॉर्म लॉ सारे स्टेट्स में है, सर या फिर ये कोई सेंट्रल लगभग लेवल सेंटर का कोई लॉ है? तो सेंट्रल का तो पता नहीं था, पर सीबीएसई बोर्ड तो में तो मैं है। चाहता हूँ शालिनी, जो आप मुझे आंसर दें रीजन के साथ में। ओके सर। ठीक ठीक, तो आपका ये काम है, आपका नहीं, ये सबका काम है, जी सर। ठीक। एक कोई और गया। अगेन सर, जाने वालों को कौन रोक सकता है? ठीक। अच्छा, मेरे को लग रहा है कि अब वो शायद इंटरेस्ट हो रहे हैं धीरे धीरे लोग, इसलिए कम होते जा रहे हैं। 15 से 13 पहुंच गए, 16 से 13 पहुंच गए, 3 लोग जा चुके हैं एक्चुअली। एक्चुअल स्ट्रेंथ वाज 16, नाउ इट्स 13। ओके, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक। बाकी अगली क्लास में आई विल टेक अप, और ये क्लास यहीं एंड करते हैं। नाउ अगर आपके पास कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो बेटा, देन यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग। नो क्वेश्चन सर। सर इम्पोर्टेंस ऑफ फार वाला कब मंडे को करवाओगे आप? मेनका गांधी वाला कुछ पॉइंट्स आप बोल रहे हो? यस यस सर। मैं ठीक है, वो भी लिखा दूंगा बेटा मैं, फॉर श्योर। उसको मैं शॉर्ट नोट कर लूंगा, लिख लूंगा, एंड आई विल डिक्टेट दैट एज वेल, ठीक। हिंदी वाले बच्चे सिर्फ आप लोगों से बात करनी है, बाकी आप सभी लीव कर सकते हैं बेटा। 2 मिनट बस हिंदी वालों से मुझे ओके बात सर, करना थैंक यू है। सर, गुड नाइट। गुड नाइट गुड बेटा, नाइट सर, गुड नाइट बाय बाय, टेक केयर प्लीज, ठीक। समीक्षा 2 मिनट का टाइम चाहिए मुझे आपका बस, ठीक। हिंदी वाले बेटा, आप लोग ये बताओ कि कल क्या क्या आपके इश्यूज, क्या क्या क्वेरीज हैं, ठीक, दैट यू वांट मी टू टेक अप। सर क्वेश्चन एक बार अच्छा, सर वो समझा क्वेश्चन दीजिए। क्वेश्चन क्वेश्चन आप बोल रहे हो कि वो असाइनमेंट वाले क्वेश्चन जरा आप हाँ लोग सर, लिखें, ठीक। एक तो बार कौन सा पीटी है बताना, मैं वो डाउनलोड कर लूंगा। सर सबसे स्टार्टिंग वाला, पीटी क्योंकि 1 and 2, हाँ सर, क्योंकि सबसे पहले वही नहीं किए हैं तो फिर आगे कैसे बढ़े। ठीक। और क्या क्या चीज़ है तो जो, एक चीज हमको बता दीजिए सर कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट होते हैं बेटा? 22 और 25, सही क्या होगा? 25 बेटा, बस सर इंडेक्स में तो 22 लिखे हुए, बैरेक वो में भी नंबरिंग है बुक तो में। आप उसको काउंट करो ना। सर वो तुम काउंट किए थे, सर 22 था, और उसमें ना बीच में कोई पार्ट था तो सर जिसको लेके 25 हो रहा था, क्योंकि ऐसे ही लिखा हुआ था सर बैरेक्ट में, हम पढ़े थे इसलिए हम कंफ्यूज हो रहे थे कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए सर। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम काउंट क्या करने के कर बाद कितना आ रहा है शालिनी? सर? 22, और बीच में जो 3 अंडर है उसको भी ऐड कर ले सर। सर हाँ, मैं ये पूछ रहा था, मैंने एक क्वेश्चन देखा था प्री का, तो उसमें सर हाँ, ऑप्शन में 22 ही था, 25 भी नहीं था। कंफ्यूजन लग रहा था। 22 नहीं था वो क्वेश्चन, आप मेरे को फोटो खींच के भेजो। मैं सर ये भी 2, भूल गया, देखा कहाँ था, मैं फिर भी ढूंढूंगा, मिल जाएगा, मैं आपको भेज दूंगा। ऐसा तो कैसे हो सकता है? पार्ट सर 22 ऐसा लिखा हुआ हुआ है। है सर, और बीच बीच में डाला हुआ है सर, अब लेकिन देखो उसको हम लोग काउंट करेंगे या नहीं करेंगे? देखो, एक तो 4A एक्स्ट्रा है, जी सर। 4A, ठीक। उसके बाद 5, 6, ठीक। फिर वो म्यूनसिपालिटीज वाला और कोऑपरेटिव सोसाइटीज का हाँ, 2 नहीं, ही हो। 7 रिपील्ड है ना, उधर 7 जी रिपील्ड है, सर। ठीक। 7 के बाद जो है 9A, देन 9 जी 9 सर। B, ठीक। उसके बाद ट्राइब्यूनल वाला आपका आएगा 10 11, ठीक। 11 12 12, ठीक। 13 14, फिर 14A, 6 हाँ 14 14A, ठीक बेटा। जी सर। 15 16 17 18 19 20 21
22, ठीक। तो टोटल 22 हुए, ये 23, ये 24, ये 25, ये 26 हुए शालिनी। तुम्हारे जी सामने सर। गिन रहा हूँ, देखो मैं कुछ नहीं, तुम्हारे सामने सर गिन के एक तो दिखाया। रिपील है, वो 26 तो हट जाएगा। और ये रिपील वाला हटा दिया तो कितना बचा? 25 सर। 25। कितना आसान है। सर अगर ऑप्शन रहा सर 22 और कॉन्ट्रैक्ट 25 तो हम सेक्शन ही 25 बता कर दो देंगे, अभी। अगर सिर्फ 22 रहा। ओरिजिनल जो है बेटा, ठीक, ओरिजिनली इट वाज 22, ठीक। अगर आपसे ये पूछता है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे, 22 थे, ठीक। अगर आपसे ये पूछता है कि ऐसे कितने थे, तो 25। क्लियर? सर कॉन्ट्रैक्ट के कुछ सेक्शन पूछ रहे, टोटल सेक्शन कितने, तो कैसे बताएंगे अब? रिपील वाले निकाल दोगे, सेक्शन नहीं पूछेंगे यार, क्यों पूछेंगे सेक्शन? तुमको कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन सर आर्टिकल ये जो ये हम 4-5 हमें से किसी ने पूछ लिया था, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक। अच्छा, और क्या क्या चाहते हैं ताकि मैं कल उस हिसाब से प्रिपेयर कर लूं बेटा? जनरल डिस्कशंस के अलावा और कोई बात आपको जो चाहिए कि हाँ इस पे सर ये हिंदी में कुछ करके आइए, या हिंदी में वो बता दो, वो मैं स्पेशली तैयार कर लूं। एक चीज सर, एक क्वेश्चन है, नागरिकता का अर्जन किया जा सकता है, सर नागरिक अर्जन क्या होता है सर? अर्जन मतलब एक्सेप्ट करना? नहीं, अर्जन का Adopt मतलब करना। एक्सेप्ट नहीं, ठीक, मतलब ये दिया जाता है। अडॉप्ट करना। हाँ। मतलब ये जो भी होता है सर, इसमें क्वेश्चन ऑप्शंस है, जन्म द्वारा, वंश क्रम द्वारा, राजनीतिक हैसियत द्वारा, रजिस्ट्रीकरण द्वारा। तो सर अर्जन को कैसे हम क्या इसका आंसर टिक करेंगे? अच्छा, मैं देख लूंगा। गुड। तो इसका आंसर बुक में दिया हुआ है राजनीतिक हैसियत द्वारा, तो राजनीतिक हैसियत, ठीक, तो अर्जन हो सकता है सर? अर्जन का मतलब ही नहीं समझ में आया हमको अभी तक। ठीक है, मैं देख लूँ। ये हिंदी वाला इसीलिए बहुत परेशानी होती है। सोचो सारे जजमेंट जो हैं सब इंग्लिश में होते हैं, ठीक, फिर मैं उसको डिकोड करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, और एक काम और करना, जिनके जिनके क्वेश्चंस हैं, जिनके भी, जीशान, कुलदीप, शालिनी, रवि, मुकेश, ठीक, आप सभी लोगों को क्या करना है, मेरे को रात में मेल कर देना, रात में याद से मेल कर देना, हिंदी इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में लिख पाओ, जो भी दिक्कत परेशानी है कि ये चीज़ मेरे को डाउट टर्मिनोलॉजी सेशन में आपसे बात करनी है इसके रिगार्डिंग। ओके? ओके सर। मेल कर दे सर, रात में पहले सारा क्वेश्चन अरेंज कर लेते हाँ हैं क्या क्या हाँ, पूछना है। ठीक। हाँ, और क्लियर ऐसे लिखना कि मैं समझ जाऊं, ठीक, हिंदी इंग्लिश कुछ में किसी में भी लिख देना जो आपको फीजिबल लगे, ठीक, बस मैं समझ जाऊं, ठीक। फोटो भी डाल देना अगर कुछ ना समझ में आए तो, ओके ओके क्वेश्चन का खींच के या उस चीज का। समझ गए आप लोग? सर मुझे एक चीज पूछनी थी। हाँ बेटा बताओ। सर मैं ये कह रहा था, कल जैसे कल पूछना, कुलदीप, अमित। उसका नहीं है सर, थोड़ा अलग है ये, हाँ बता हाँ, देते हैं। सर मैं ये कह रहा था, अभी जैसे नहीं, हम समीक्षा को फंसाए हुए हैं, कल पूछ लेना मुझसे, ठीक, तुम्हारे लिए ही पूरा अच्छा, सेशन। ठीक है सर। हाँ, समीक्षा इज देयर एंड शी हैज टू लीव बेटा। ओके, तो ओके कल बात कर लेंगे, ठीक अमित? ओके सर, गुड नाइट। ओके बेटा, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू समीक्षा। Good night, sir. गुड नाइट सर। गुड नाइट।